Today we are going to take up Birches by Robert Frost. See, Frost was a nature lover, and metaphorically, he has used nature to examine the complex social and the philosophical themes. Fine. Now, the present poem, which is prescribed in your course, that is Birches by Frost, it actually tells us that we should maintain a balance between reality and imagination and our daily routines and aspirations. Now, what happens is, sometimes we face confusions in life. Sometimes there are complexities, and we try to, go into our imagination and we try to relax there. So Frost says it is good. ये अच्छी बात है that just because we are facing confusions because of some things, we can go into our imagination. We should relax there. We should refresh ourselves, but we should come back to the present world, to the real world, to fulfill our duties and responsibilities. ओके फ्रॉस्ट का यही कहना है कि हम अगर इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जा रहे हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम बट वी शुड कम बैक वी शुड नॉट ड्वेल्व इनटू इट ओके ऐसा नहीं है कि हम लोग वहीं पर रह जाएं वी शुड कम बैक टू द world the present world also to fulfill our duties and responsibilities which we have left undone. So this idea he wants to convey here that we should maintain a balance between the fact and the fancy. Now, what are birches? Birches are actually they are forest trees. ये एक तरह के natural vegetation ही है. So और इनकी जो branches होती हैं they are very slender and flexible. ये काफी thin भी होती हैं पतली and they are very flexible. They are just like springs. Okay, they can swing up and down. ये ऊपर नीचे हो सकती हैं. तो जस्ट बिकॉज ये ऊपर नीचे हो सकती हैं तो इसको क्या करते थे गांव के जो बच्चे होते थे जो रूरल बॉयज होते थे वो इससे खेलते थे और इसको झूला बना के दे यूज टू दे यूज टू स्विंग वो इसको झूला बनाकर झूलते थे एंड फ्रॉस्ट भी बचपन में यही किया करते थे because he was a nature lover so he used to roam around into the woods and he used to swing on the birches एंड इसी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से एक्चुअली इंस्पायर होकर फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है वो एक्चुअली यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये जो स्विंगिंग है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है एक तरीके को ताकि हम जिससे हम अपनी बिजी लाइफ से जो है कुछ मोमेंट्स के लिए छुटकारा पाकर अपने इमेजिनेशन में जा सकते हैं थोड़ी देर वहां पर एंजॉय कर सकते हैं रिलैक्स कर सकते हैं एंड देन वी कैन कम बैक एंड वी कैन फेस the realities of life. Okay, so Frost का ये कहना है he has actually presented a way to escape the rationality or the truth of the adult world or you can say the busy world. Fine, ये कहने की यहाँ पर कोशिश की है फ्रॉस्ट ने we can go into the imagination but we have to come back. Now we come to the poem directly, that is the first line. Now see, there's the traveler, the narrator, okay, and he is just passing by the woods, and while he is passing by the woods he looks at the birches and birches जो है वो काफी bend down है so he thinks about them. He says when I see birches bend to left and right, जब हम देखते हैं कि बर्चेस जो है लेफ्ट और राइट जो है झुकी हुई हैं अक्रॉस द लाइंस ऑफ स्ट्रेट डार्कर ट्रीज अक्रॉस द लाइंस कंटिन्यूअसली एक लाइन में जो है ये स्ट्रेट जो है ट्रीज के जो ट्रंक्स हैं स्ट्रेट खड़े हुए हैं एंड वो डार्कर डार्कर इसलिए है बिकॉज द सन आई थिंक इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पोएट यानी कि द सन इज बिहाइंड द बर्चेस बिहाइंड द ट्रीज बिहाइंड द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज तो जाहिर सी बात है जब सोर्स ऑफ लाइट ऑपोजिट होगा तो ट्रंक्स आर अपियरिंग एज डार्क अक्रॉस द लाइंस ऑफ सो he says that when I see the birches bend to left and right across the lines of straighter darker trees I like to think some boys been swinging them. Now please pay attention here that he says I like to think. वो कह रहा है पोएट और द नरेटर द ट्रैवलर ही इज सेइंग कि मुझे ऐसा लगता है मैं ये सोचना चाहता हूँ या मैं ये समझना चाहता हूँ कि किसी बच्चे ने किसी लड़के ने इसे जो है स्विंग करते करते इसे बेंड कर दिया है ओके बट एक्चुअली दिस इज नॉट द रियलिटी रियलिटी वो तो अभी आगे वो बता देंगे रियलिटी एक्चुअली ये है बिकॉज स्नोस्टॉर्म आया है एंड द स्नो इज देयर और द आइस इज देयर ऑन द ब्रांचेस तो वो आइस लोड की वजह से जो है वेट की वजह से बर्चेस जो है वो बेंड डाउन हो गई हैं दिस इज एक्चुअली द रियलिटी स्विंगिंग की वजह से वो इतना ज्यादा बेंड डाउन नहीं होती ये बात खुद फ्रॉस्ट ने भी यहाँ पर अभी जो है ये नरेटर हम लोगों को बता देगा ही सेज कि बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे as ice storms do. So you see,
बच्चे जब स्विंग करते हैं, बच्चे जब झूला झूलते हैं, तो उससे बर्चेस इतनी ज्यादा बेंड डाउन नहीं हो जाती जितना आइस स्टॉर्म से होती है। लेकिन नैरेटर यही सोचना चाहता है कि किसी बच्चे ने बेंड डाउन किया होगा, जस्ट बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ स्विंगर ऑफ द बर्चेस। वो अपने बचपन में करता था, तो वो सोचता है कि नहीं नहीं, बर्चेस को क्या कहते हैं, किसी बच्चे ने ही झूल के झुकाया है, किसी बच्चे ने ही जो है इस पर झूला झूला है, तभी ये इतनी बेंड हो गई है। बट इन रियलिटी इट इज नॉट द केस। इन रियलिटी दे आर बेंड डाउन बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ द आइस। So let's move ahead. Often you must have seen them. Now he tells us the reality, what the case is. He says, often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. तो वो कहता है अक्सर आपने देखा होगा कि बर्चेस जो हैं वो लोडेड होती हैं आइस से एक सनी विंटर मॉर्निंग पर, आफ्टर अ रेन, आफ्टर अ स्नो रेन। स्नो रेन की वजह से, बर्फ के वेट की वजह से बर्चेस बेंड हो जाती हैं। They click upon themselves as the breeze rises. Click upon themselves, they make a clicking sound just because they are coated with ice. तो जब birches आपस में टकराती हैं, they hit each other, तो they make a clicking sound. वो click click करती हैं, okay? As the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and crazes their enamel. Turn many colored, just because क्लिकिंग की वजह से जब वो एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनके बीच वो जैसे कहते नहीं, एक हेयर लाइन सा, जब वो क्रैक्स डेवलप होते हैं, जब क्रैक्स आ जाता है, तो क्रैक्स में जब ये सनलाइट जो है पड़ती है, तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दे टर्न मैनी कलर्ड। ओके, रिफ्रैक्शन आपने देखा होगा, एक प्रिज्म का भी जो जो रिफ्रैक्शन होता है, जब सनलाइट उसके उसके पास जाती है और रिफ्रैक्शन की वजह से टर्न्स मैनी कलर्ड मींस रेनबो कलर्ड, द सेवन कलर्स। सो इट टर्न्स मैनी कलर्ड एज द स्टर क्रैक्स and grazes the enamel. Cracks means it breaks. Enamel is the white coating of the snow. So the snow has actually coated the branches, and just because अब सूरज आ गया है और वो क्लिक कर रही हैं एक दूसरे से, और जब उनके पास उनके ऊपर फ्रैक्चर सा हो जाता है, एक ब्रेक सा लगता है, जब वो क्रैक करती हैं, तो दे टर्न मैनी कलर्ड। Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells. Sun warmth. Okay, so just because the sun is shining now and the warmth of the raises, okay, so the raises make them shed crystal shells. So जस्ट बिकॉज द सन इज देयर नाउ एंड द रेजेस जो है वो पड़ रही हैं इनके ऊपर, तो वो वार्मथ की वजह से जो है अब बर्फ पिघलना शुरू होती है, और जब बर्फ पिघलती है तो वो कैसे गिरती है, वो क्रिस्टल शेल्स की तरह से जमीन के ऊपर गिरने लगती है। शैटरिंग एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट ग्राउंड। शैटरिंग एंड एवलांचिंग, जैसे आपने देखा होगा कोई शीशा, कोई ग्लास अगर आपसे गिर जाए तो वो चकनाचूर हो जाता है, शैटर कर जाता है। तो उसी तरह से सन की वार्मथ और रेजेस की वजह से जब स्नो जो है ब्रांचेस पर से गिरती है, तो ऐसे वो शैटर हो जाती है, वो एकदम हर जगह जो है बिखर जाती है। शैटरिंग एंड एवलांचिंग, एवलांचिंग ऑल्सो ओवर हियर मीन्स शैटर्ड ओनली। Avalanching on the snow crust ground, snow covered ground. Such heaps of broken glass to sweep away, you'd think the inner dome of heaven had fallen. तो इतने बहुत सारे ब्रोकन ग्लास के पीसेस पड़े हुए हैं क्रिस्टल की तरह, और एकदम पूरा शैटर्ड पड़ा हुआ है, शैटर्ड ग्लास इन क्रिस्टल की तरह। यूड थिंक, आपको ऐसा लगेगा, द एक्चुअली द नरेटर इज सेइंग कि आपको ऐसा लगेगा दैट द इनर डोम ऑफ द हेवन हैड फॉलन। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमेजरी कि हेवन है, हेवन में जो इनर डोम है, जो क्रिस्टल का या ग्लास का बना हुआ होगा, ऐसा लग रहा है कि वो गिर गया है और वो टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। सो inner dome of heaven had fallen. They are dragged to the withered. Now they यहाँ पर कौन है? The birches. They are dragged to the withered bracken by the load. तो जो birches हैं वो dragged हैं. Birches जो हैं वो बहुत ज़्यादा bent हैं, किसकी वजह से? Because of the load of the ice. Okay, because of the load. लेकिन कहाँ तक? To the withered bracken. Withered bracken, write down over there, dried fern or scrubs. ये जो ठंडे इलाकों में जो है जो फर्न्स एंड स्क्रब्स निकल आते हैं जमीन के ऊपर घास की तरह, उनको कहा गया विदर्ड ब्रैकन। तो जस्ट बिकॉज द बर्चेस आर लोडेड विद आइस, तो वो इतना ज्यादा झुक गए हैं कि वो कहां तक आ गए हैं? विदर्ड ब्रैकन, यानी कि फर्न्स और स्क्रब्स तक आ गए हैं। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, दे सीम नॉट टू ब्रेक, यस, बिकॉज द ब्रांचेस आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट ब्रेकिंग। कोई भी आपको पता है स्प्रिंग जो है आप जितना मोड़ेंगे उसे वो मुड़ जाएगी, लेकिन वो टूटती नहीं है। सो जस्ट बिकॉज द ब्रांचेस आर फ्लेक्सिबल, वो मुड़ तो गई हैं, वो बेंड तो हो गई हैं, लेकिन वो टूट नहीं रही हैं। ओके, एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, दो वंस दे आर बोर्ड सो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्व्स।
ये भी एक ट्रूथ है, पोएट का कहना बिल्कुल सही है कि जैसे स्प्रिंग को अगर आप एक ही डायरेक्शन में ज्यादा देर तक मूव करके या बेंड करके रखेंगे तो फिर वो दोबारा स्ट्रेट नहीं हो पाती। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ द आइस, बर्चेस जो है वो बहुत ज्यादा बेंट हैं, तो इतनी देर से वो बेंट है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द आइस, अब वो स्ट्रेट नहीं हो पाएंगी। Okay, so long for they never right themselves. You may see their trunk arching in the woods years afterwards. Now, this is also a very beautiful imagery. आप देखेंगे कि कई साल के बाद बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ द आइस ये जो बर्चेस बेंट थे, अब आप कई साल के बाद देखेंगे कि इनके ट्रंक्स जो है वो आर्च बनाए रहेंगे वुड्स में। वुड्स में जब आप जंगल में देखेंगे तो आपको बहुत सारी गोल गोल आर्चेस दिखाई देंगी। आर्च इज सेमी सर्किल, आपने देखा होगा ये जो सेमी सर्किल, जैसे हम लोगों क्या नहीं, लाइक ये जो वेरांडास वगैरह होते हैं तो उसमें आर्चेस होते हैं इंट्रेंसेस के लिए, एक दर बना होता है, ओके, सेमी सर्किल का। तो ये जस्ट बिकॉज ब्रांचेस इस तरह से झुक गई हैं तो दे आर मेकिंग आर्चेस इन द woods years afterwards, trailing their leaves on the ground like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun. Trailing, right on over there to bull behind. तो ये कह रहा है कि ब्रांचेस जो हैं, जो बर्चेस हैं, वो इस तरह से झुक गई हैं, इस तरह से उन्होंने आर्च बनाया है वुड्स में, जैसे कि जो गर्ल्स होती हैं जब वो निकल कर आती हैं नहाने के बाद, after taking a bath, and they try to bring all the hairs in the front, वो अपने बालों को आगे करके उसे सुखाने की जब कोशिश करती हैं in the sun, like girls on hands and knees, अपने हाथ उन्होंने कहाँ रखे हुए हैं, अपने knees पर, hands and knees, and that throw their hair before them their heads to dry in the sun, वो अपने बालों को आगे ले आती हैं और उसे सन में सुखाने की कोशिश करती हैं। तो just because actually you can say just like the branch, the trunk of the tree, ट्रंक जो है ट्री का जो है जब वो झुका हुआ है, उसने आर्च बनाई हुई, तो ब्रांचेस के ऊपर जो लीव्स हैं वो लटक रही हैं। तो उसी तरह से दिस इज एन इमेजरी, यू कैन से, और अ कंपैरिजन द पोएट हैज मेड, दैट they are like the girls who are actually drying up their hair in the sun. But I was going to say when the truth broke in. Now please try to understand here. आप यहाँ पर इसको देखिए, ये जो ऊपर वाली लाइन हम लोगों ने पढ़ी है, but swinging doesn't bend down to say as ice storms do, है ना? सच बात तो यही थी कि बर्चेस क्यों झुके हैं, बिकॉज ऑफ द आइस स्टॉर्म्स। लेकिन पोएट क्या चाहता है, पोएट ये चाहता है कि वो ये सोचे कि बर्चेस को किसने झुकाया है, किसने बेंट किया है, सम बॉय, किसी बच्चे ने खेलने खेलने में बर्चेस को बेंट कर दिया है। सो ये बात जो उसने इतनी देर से हम लोगों को बताई अबाउट द स्नो, एंड स्नो की वजह से जो बर्चेस बेंड हैं एंड दे आर मेकिंग आर्चेस, ओके, सो ये बात जो पोएट ने हमको बताई है, दिस इज द रियलिटी, बट he does not want to discuss the reality. He wants to discuss his own imagination. वो अपनी imagination discuss करते हैं, इसलिए वो नीचे चले आते हैं, वो ये बात कहते हैं, but I was going to say when truth broke in. हम तो वो कहने जा रहे थे जब ट्रूथ बीच में आ गया। ट्रूथ क्या आ गया? ट्रूथ ये आ गया कि बर्चेस को आइस स्टॉर्म ने जो है बेंट किया है, ये ट्रूथ है। तो हम तो कुछ और कहने जा रहे थे लेकिन बीच में ट्रूथ आ गया। एक्चुअली इसको हम लोग, आप अगर इसको चाहें तो एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, ऑफन यू मस्ट से लेकर ड्राई इन द सन तक एक ब्रैकेट लगा लीजिए। इसको हम लोग एक्चुअली इंग्लिश में कहते हैं, लिटरेचर में कहते हैं इनविजिबल ब्रैकेट्स होते हैं ये, इनको हम लोग पेरेंथेसिस कहते हैं। पेरेंथेसिस का मतलब होता है व्हेन द स्पीकर डिविएट्स फ्रॉम द टॉपिक और वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ है, पोएट जो है वो एक्चुअली टॉपिक से डिविएट कर गया। ही वाज एक्चुअली व्हाट ही वाज डिस्कसिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड, ओके, he was discussing about how the boys swing and bend the birches, लेकिन बीच में वो डिविएट कर जाता है अपने टॉपिक से और वो हम लोगों को सच बताने लगता है कि किस तरह से वो जो ब्रांचेस बेंड हुई हैं बिकॉज ऑफ द स्नो। सो ही सेज कि नहीं, ऐसा नहीं है, ही वांट्स टू डिस्कस अबाउट द चाइल्डहुड।